अंडमान जल क्रीड़ा साहसिक कार्य, भारतीय राष्ट्रीय जीवन रक्षक संस्था तथा हेयर एंड बियॉन्ड लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के सहयोग से वृक्षाबाद तट पर तट स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में कलकत्ता इंटरनेशनल स्कूल के 18 विद्यार्थियों तथा 2 शिक्षकों और श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के 20 सफाई मित्रों ने भाग लिया। इस तट स्वच्छता अभियान का उद्देश्य तटों को साफ रखना तथा मरीन पारिस्थितिकीय तंत्र की सुरक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न कराना था। स्वच्छता कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को नगरपालिका परिषद के पृथक्करण इकाई में ले जाया गया, जहां उन्हें अधिकारी द्वारा पृथक्करण के विभिन्न पहलुओं, प्रयासों तथा पद्धतियों के बारे में बताया गया। It is our responsibility to keep our island neat and tidy. For that, we are doing our level best. You might have gone to all the places within the Portler area. We have our 41.22 square kilometer area. That is our, all area has been divided into 24 wards, and the duty of each ward is to clean their entire area which comes under their purview. How to pick the garbage which we are generating every day, right? We are generating 2 types of garbage. One is wet, another is dry. One is degradable, another is non-degradable, right? In that, the food waste what we are generating every day, the waste we are generating, that has to be attended separately. And the other waste, that is our plastic bottles, recyclable goods, glass bottles, and all other articles which comes under the dry waste, that has to be collected separately. So our team in each ward used to go to the ward level, go to the individual residents and individual household. They just blow whistle, and the household people, they used to bring their product and they give it to our Safai Mitras. We don't call them sanitary worker, we call them Safai Mitras, right? And Safai Mitras, they used to collect, they used to pour in the different bins, and they segregated source, everything has been segregated. They bring all these things to the concerned DRC. There are places called wet processing center. You might have going to see now one processing center. Another is dry waste recycling center, right? So the wet waste go for manure, and the process is to, at last we bring it some sort of manure from it. And the other part, that is DRC, that is dry resource center, where we segregate the garbage. The DRC people, they used to segregate, the entrepreneurs, they used to segregate this thing, and in which they take out the things which is recyclable, like cardboards. We are getting all the materials from mainland, right? So packaging materials, goods, and PET bottles for drinking water. PET bottles are n numbers of PET bottles in Portland, right? In Portland and Sri Vijayapuram, and those are to be collected separately and processed, so that they just make a bale of it, of a size of about 100 to 120 kilo. A bale is weighing about that much. That has been shifted to mainland by the DRCs. We have appointed DRCs. As on date, 18 DRCs are there. They take care of entire recyclable garbage. You might have seen in the beaches, there are polythene, there are PET bottles which destroy the ocean life. The life of the fishes is going down day by day. If you swim near to the beach, you might have seen lot many garbages inside the sea. And we are trying our level best to bring all this and process it and to send it to mainland. You might have seen the Portland area is completely cleared. You may not have garbage on roadsides like mainland and other places. We are trying our level best to improve day by day, day by day, day by day. And a day we will achieve the target. Sustainable project where their garbage, their needs and their recycling can be done. So let's see what we can come up in the evening discussing what we learn from here after everything is done from here. में जो अपनी जान को खेल कर
जो इस धरती को बचाने के प्रोजेक्ट में, the people who are there to save the planet Earth, they are the frontliners. And these are the people who are willing, they are the part of the society. They can do X number of jobs. वो कुछ भी कर सकते हैं जिंदगी में. But they have taken on the responsibility to take that role in the society and make sure that the society and the environment and the planet Earth is clean. जिसके बाद स्कूल छात्रों ने भी वृक्षाबाद में चलने वाले सफाई अभियान में सफाई मित्रों का साथ दिया। श्री अजीजुल रहमान भी अन्य अधिकारियों के साथ इस अभियान में शामिल हुए। स्कूल के शिक्षकों ने वर्तमान में बदलते पर्यावरण के समस्याओं और साफ सफाई से बच्चों को अवगत कराने पर जोर दिया। हम आज कारवेंस को बीच के बैक साइड जो है वृक्षाबाद बीच में सभी एक साथ यहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ कैलकाटा इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स आए हैं और हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ज़की अहमद जी और सैनिटरी इंस्पेक्टर और कुछ हमारे जो सफाई मित्र जो हैं सभी साथ में इस बीच को जो है क्लीनिंग का जो है काम कर रहे हैं। तो हम बस यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा आइलैंड को क्लीन रखे, साफ़ सुथरा रखे। बीचेस हमेशा जो है जो टूरिज़्म का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, कई हज़ारों लोगों का रोज़ी रोटी का ज़रिया है ये, तो इसको जो है हमेशा हम बीच को साफ़ रखें, क्योंकि दूसरे कंट्री से भी यहाँ पर जो है काफ़ी प्लास्टिक्स बहकर आता है और हमारे यहाँ पे भी ड्रेनेज जो है उससे भी जो है समुंदर में आ जाता है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि हमेशा अपने आइलैंड को साफ़ सुथरा रखें और घर में जो कचरा हम देते हैं हमारे सफाई मित्रों को प्लीज़ सेग्रीगेट करके दें, क्योंकि हम लोगों ने वो इंतज़ाम आपको करके दिया है। वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट के लिए जो डस्टबिन आपको घर घर में दिया गया है, तो इसको जो है फॉलो करें, क्योंकि ये देने से क्या है कि हम सेग्रीगेट करके देने से हमारे सफाई मित्र का जो है काम जो है आसान होगा, नहीं तो इनको जो है बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है और जिससे उनका हेल्थ का भी इशू हो सकता है। तो जितना हम साफ़ सुथरा से अपना कचरा सफाई मित्र के हाथ में देंगे वो सही जगह पर वो पहुंचेगा। आज जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ स्कूल के बच्चे कलकत्ता स्कूल से आ रखे हैं, कलकत्ता इंटरनेशनल स्कूल से। ये अपने कैश प्रोग्राम पे आए हैं जिसके अंदर इनको क्रिएटिविटी, एक्टिविटी और सर्विस एलिमेंट करना होता है। इस वक्त आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे अब क्लीनिंग इवेंट पे लगे हुए हैं, जिससे ये समझ पाएंगे कि हम एज अ सोसाइटी कितना गार्बेज क्रिएट करते हैं और कहाँ कहाँ से ये गार्बेज आता है, उसको सेग्रीगेशन कैसे किया जाता है और इस गार्बेज का हमारे प्लेनेट, हमारे लैंड पर क्या असर पड़ता है। ये बच्चों के लिए बहुत मीनिंगफुल एक्सरसाइज रहेगी, क्योंकि आज हम कई बच्चों से बात कर रहे थे। बच्चे 10 रुपये का एक कुरकुरे का पैकेट लेते हैं, आराम से वो 10 रुपये का स्नैक खाते हैं, पर वो कभी नहीं सोच पाते हैं कि वो जो 10 रुपये का जो प्लास्टिक का पैकेट है उसका क्या होता है। आज कई बच्चों ने वैसा ही कुरकुरे का पैकेट देखा जो सॉइल को डर्टी कर रहा है, जो बीचेस को डर्टी कर रहा है, एक्वेटिक लाइफ को हार्म कर रहा है। इससे बच्चों को एक फ़र्स्ट हैंड इंसाइट मिला है कि हमें एज अ सोसाइटी और एज अ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होना है कि हम कैसा गार्बेज जनरेट कर रहे हैं, कैसा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं।
तो हम हैब लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऐसी कई सारी ड्राइव्स ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं और हम चाहते हैं कि हमारे देश का भविष्य, हमारे देश के बच्चे ये जान सकें और समझ सकें और 2 घंटे, 1 घंटा, आधा मिनट, 2 मिनट सोचकर कोई सोल्यूशन निकाल सके, कोई नया सिस्टम निकाल सकें, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आगे जाकर बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठेंगे, पॉलिसीज़ बनाएंगे। अगर वो इस यंग एज में ये सब समझ पाएंगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा देश और हमारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा और हम इस गार्बेज और इस गंदगी से बहुत अच्छे से लड़ पाएंगे।